Now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh. Yes, ma'am. So first we will start with the pseudo branch. Okay. So as the name, first हम नाम पे जाते हैं. Okay. And we'll start with when we bifurcate this name pseudo branch, then it is basically made up of two words. Okay. One is the pseudo, another one is the branch. So when I'm talking about pseudo, pseudo means what? False. False. Okay. And here it's the branch or branch basically comes from the branchia, and branchia means what? Gill. Okay. So अगर मैं pseudo branch की बात करूं, so basically a false gill. A false gill जैसी क्या बात हुई? अगर gills की बात करूं तो gills का major function क्या है? Respiratory. जहाँ पे क्या होता है? Gill is basically the site of gaseous exchange. So when I'm talking about the pseudo branch means a gill which doesn't have a respiratory function. That's why the pseudo branch. Okay. So whenever I'm talking about the organ pseudo branch, this is an organ which have the structure similarity, or which is structure is similar as a gill, but it doesn't perform the respiratory function. Okay. So let's see. So when we were studying the circulatory system, the respiratory system, that time we have discussed the morphology of the gill. So gill are basically, when we talk about the bony fishes, they are made up of 4 hollow branch. And in मैम आवाज नहीं आ रही है मैम. बिल्कुल नहीं आ रही. अच्छा वेट करो थोड़ा. मैम रुक रुक के आ रही है मैम. रुक रुक के आ रही है. अच्छा एक सेकंड. ये वाली स्लाइड पे जो मैंने pseudo branch डिस्कस किया, that was clear? Yes, ma'am. Okay. So now we will talk about the structure of the pseudo branch. So when we studied the circulatory system or respiratory system, that time we have gone through the anatomy of the gill. Anatomy of the gill जब हम पढ़ रहे थे, what we have studied a single gill which is V shape. Here you can see that V shape form a hollow branch. Okay, or a single arm is known as a hemibranch, and both together which forms a V-like structure is a hollow branch. So when we talk about the bony fishes or the basically teleost fishes, they have 4 pairs of hollow branch on each side. 4 pairs of hollow branch, 4 for each side. Okay. And when we talk about the elasmobranches or the cartilaginous fishes, they have 5 pairs of hollow branch. So when we talk about the term pseudo branch, it is basically the first gill or the first branchia which reduced in size and lost its respiratory function. Means अगर मैं teleost की बात करूं तो जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ होलो ब्रांच या हेमी ब्रांचेस हैं उसमें लगी हुई, वो एक्चुअली फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नहीं है. दे आर एक्चुअली सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. Okay, the first one is reduced in size and it has lost its respiratory function. So means the first gill जो है, first gill which is reduced in size and lost the respiratory function is termed as a pseudo branch. Here you can see that ये जो फर्स्ट वाला है जिसका साइज भी रिड्यूस हो गया है, ये आपका pseudo branch है. फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ दे आर द गिल्स और द होलो ब्रांचेस. ओके. सो अब इसने अपना रेस्पिरेटरी फंक्शन लूज किया. क्यों किया? बाकी ये जो गिल्स है वहां पे क्या होता है, गिल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं. ठीक है. और फिर वहां पे उसका जब वो वाटर करंट वहां से पास करता है विच इज रिच इन द डिसॉल्व ऑक्सीजन, तो क्या होता है कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड. लेकिन जो सीडो ब्रांच है, ये जो सूडो ब्रांच है, ये ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें आता है. मतलब इट रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द इफ्रेन ब्रैंकियल आर्टरी. मीन्स यहाँ ये
डायरेक्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रिसीव कर रही, तो जब ये डायरेक्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रही है तो यहाँ पे क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेशन से ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई इट डजंट हैव द रेस्पिरेटरी फंक्शन. सो अब जब इसका रेस्पिरेटरी फंक्शन नहीं है तो इसकी क्या फंक्शन है, दैट वी विल सी लेटर. सो एक्चुअली दिस सीडो ब्रांच इट डेवलप्स अर्ली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज. ओके, और ऐसा ऐसा assumptions है कि it may serve as a respiratory organ during the embryonic stage, but when but in the adults it doesn't have the, or it loses the respiratory function. Okay, so and this pseudo branch it is present in large number of teleos. Okay, but there are some fishes, catfishes mainly, and some eels like catfishes like Villago, misters, then eels and species which belongs to Zimnarchus and Corbetids. They also doesn't have the pseudo branch. Okay, so now the structure. So generally अगर मैं सबकी बात करूं तो जो फर्स्ट रिड्यूस गिलार्क है जिसने अपना रेस्पिरेटरी फंक्शन लूज कर दिया है, दैट इज नोन एज अ pseudo branch. But structural differences हैं थोड़े थोड़े से. They are basically of three types. The first one is the free, second one is the covered, and third one is the glandular type. So अगर मैं सबसे पहले फ्री टाइप की बात करती हूँ तो आपको बस ये करना है कि a gill in a miniature form means a gill in the reduced form. जैसे अगर आप एक नॉर्मल गिल देख रहे हैं, सो इट हैव वी शेप्ड हेमी ब्रांच, उनमें फिर आपकी फोल्डिंग्स हैं लैमिलर. ओके, सो यहाँ पे फ्री टाइप भी बिल्कुल वैसे ही है जिसमें दो ब्रांचेस हैं, उसके ऊपर लैमिलर फोल्डिंग है, बट उनका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, और ये एक एक अर्क के दोनों तरफ में फ्री टाइप लटके हुए हैं. ठीक है, दे आर हैंगिंग, फ्री हैंगिंग है, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ फ्री टाइप. अनदर वन जो है, जो दूसरी कैटेगरी है वो कवर टाइप है. बेसिकली ये भी रिड्यूस्ड गिल है, लेकिन ये जो है इसके ऊपर ऑपरकुलर मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यूज की कवरिंग रहती है. ओके, एंड जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप में बेसिकली ये बीड्स के जैसे हैं स्मॉल गिल्स हैं, बट वो आपके थिक कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ऑपरकुलर कैविटी के या बकोफेरेंजियल कैविटी के, उन थिक कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर जो है वो लोग एम्बेडेड रहते हैं. ठीक है, तो ये हो गए आपके तीन टाइप्स ऑफ pseudo branch. So free type, cover type and glandular type. So now the histology. जैसा कि मैंने बोला कि ये इसका फंक्शन रेस्पिरेटरी नहीं है. ओके, रेस्पिरेटरी नहीं है से मतलब ये साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज नहीं है. ओके, बट इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको भी बहुत ही मतलब कोर, जो सेंट्रल कोर है, जो एकदम सेंटर का पार्ट है, वो हाईली वेस्कुलर है. हाईली वेस्कुलर मतलब वो richly supplied है with the blood capillaries, and उसके ईच साइड पे जो है आपकी epithelial layers हैं. Then जो आपका pseudo branch है, particularly in teleos, it has large number of acidophilic secretory cells. Acidophilic secretory cells means they have the cells which secretes the acid, or they are the cells which actually reduce the pH ऑफ द सराउंडिंग मीडियम. अगर ये सेल्स अगर सिक्रीट कर रही हैं तो उस सिक्रीशन से जो ब्लड उसको बात कर रहा है या जो सराउंडिंग फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, उसका जो पीएच है वो रिड्यूस होता है, पीएच जो है वो एसिडिक हो जाता है. देन जो फ्री टाइप ऑफ स्यूडो ब्रांच है, सिर्फ फ्री टाइप ऑफ स्यूडो ब्रांच, कवर्ड और ग्लैंडुलर नहीं, only the free type of pseudo branch, they also have the chloride cells and mucus cells. ये जो chloride cells और mucus cells होते हैं, they are basically the characteristic of the functional gills जो होते हैं उसकी होती हैं. तो जो free type of pseudo branch है ये सिर्फ उनमें मिलती हैं. आपका glandular और जो cover type है, they are absent in that. Okay, now function. Okay, जैसा कि मैंने बताया, it has lost the respiratory function. तो फिर इसका काम क्या है? Okay, so actually ये जो pseudobranchial cells होती हैं, they produce one enzyme which is known as a carbonic anhydrase. But it actually secretes an enzyme which is very much similar in structure and function like the carbonic anhydrase. So because of the secretion of the carbonic anhydrase, क्या होता है? Carbonic anhydrase का क्या function होता है? कोई मुझे बताएगा? Anyone? कोई बताएगा? आपके पास सबका चार्जर है?
तो इसको चार्ज करना है। एनीवन मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस और नो? एंजाइम नहीं, एंजाइम हाँ एंजाइमिक रिएक्शन। क्या? एक एक करके बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो? अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन में कभी कार्बोनिक एनहाइड्रेस का नाम सुना है? यस मैम, वो कार्बोनिक एसिड जब बनता है मतलब CO2 से कन्वर्ट होता है तो उसमें ये कैटलिस्ट का काम मतलब कैटलाइज करता है उस रिएक्शन को। जो CO2 है वो हाइड्रोजन आयन के साथ मिल करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, फिर वो CO2 कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में बॉडी में कैरी करती है, फिर जो साइट ऑफ गैस एक्सचेंज होता है, CO2 एक्सचेंज होता है, वहां पे फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है CO2 लिबरेट कर देता है और ऑक्सीजन आयन, इज इट वही होता है ना? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस बेसिकली CO2 और जो आपकी हाइड्रोजन आयंस है उन उस रिएक्शन कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन की रिएक्शन को कैटलाइज करता है। यस और नो, यही करता है ना? सो बेसिकली ये जो सेल्स होती हैं सीडोब्रैंकियल सेल्स, ये भी आपके कार्बोनिक एनहाइड्राइज लाइक एक एंजाइम है, वो सिक्रीट करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन आयंस का नंबर बढ़ता है, जब उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ती है ब्लड की, और जब ब्लड की एसिडिटी बढ़ती है तो फिश हीमोग्लोबिन में एक स्पेशल फीचर होता है कि जब ब्लड का पीएच कम होगा या जब ब्लड एसिडिक होगा तो हीमोग्लोबिन के साथ चाहे मतलब जब तो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है उसकी बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करता है, इज इट होता है ना? हीमोग्लोबिन है वो, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है और फिर वो सर्कुलेट होता है। तो अगर ब्लड का और वो कैसे डिपेंडेंट होता है? कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर सराउंडिंग में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की और हीमोग्लोबिन का जो है वो एफिनिटी ज्यादा है, वो चारों मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े रहेंगे। जैसे जैसे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वैसे वैसे जो आपका ऑक्सीजन है सराउंडिंग में, अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिलीज होने लगेगी। लेकिन अगर मैं फिश हीमोग्लोबिन की पर्टिकुलरली बात करूं तो अगर ब्लड में चाहे कितना ही ऑक्सीजन प्रेशर क्यों ना हो, चाहे कितना ही ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्यों ना हो, लेकिन अगर ब्लड का पीएच एसिडिक है तो क्या होगा कि जो लॉस ऑफ कॉपरेटिविटी होता है बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की एफिनिटी कम हो जाती है, यानी कि सराउंडिंग में ऑक्सीजन ज्यादा है उसके बावजूद हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होके नहीं रह पाता है, उससे लिबरेट हो जाता है, उससे रिलीज हो जाता है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं रूट इफेक्ट, एंड दैट इज वेरी पर्टिकुलर टू द फिश हीमोग्लोबिन। ये सिर्फ फिश हीमोग्लोबिन में ही मिलता है, दूसरे और मतलब जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके हीमोग्लोबिन में नहीं। ओके, सो बिकॉज तो ये जो सीडोब्रैंकियल सेल ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम रिलीज करती है और फिश हीमोग्लोबिन के रूट इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, और क्यों? अब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि जो फिश आई जो रेटिना है, ओके, वो बहुत ही अवेस्कुलराइज्ड ऑर्गन है, मतलब वहां पे कैपिलरीज का जो नेटवर्क है वो बहुत ही वीक है, वेस्कुलराइजेशन वहाँ कम है, तो वहां पे आपको हाईली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम कैपिलरीज के थ्रू वहां पहुंचानी है। तो ये जो सीडो ब्रांच होता है बेसिकली ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करता है ताकि जो आपका अवेस्कुलराइज रेटिना या फिश आई है वहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंच पाए टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ विजन। ओके, ये हो गया सीडो ब्रांच का एक फंक्शन। ओके, सो बेसिकली सीडो ब्रांच में पीएच जो ब्लड का पीएच है वो कैलिब्रेट होता है उस पॉइंट पर जहां पर जैसे ही थोड़ा सा हाइड्रोजन आयन और रिलीज हो तो हीमोग्लोबिन जो है फिश का वो रूट इफेक्ट शो करे। ओके, यानी हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में भी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज हो जाए। ओके, ये फर्स्ट फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन हो गया सीडो ब्रांच का। दूसरा है
जैसे कि मैंने बोला इसमें क्लोराइड सेल्स होती हैं. It performs the osmoregulatory function. So how they perform the osmoregulatory function? They actually regulate the uptake and secretion of sodium and chloride ions, okay, from environment to the body. Then ये तीसरा function है, it also have the sensory function. It actually sense the oxygen and carbon dioxide tension in the blood. It monitors the blood pressure in the arteries and also detect the level, pH level of the blood. Okay. And species like Channa and Anabas, it performs the function of an oxygen multiplier. So this is the function of these are the some important function of pseudobranch. Now, how it how it supply the blood to the fish eye, which is a totally avascular organ. So एक्चुअली ब्लड जो है इट गेट टाइट्रेटेड इन द pseudobranch टू द pH लेवल जहां पे कि जो फिश का हीमोग्लोबिन है वो रूट इफेक्ट शो करने लगे. रूट इफेक्ट मींस एक लो एसिडिक pH पे हाई ऑक्सीजन टेंशन, हाई ऑक्सीजन प्रेशर में भी ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं हो पाएगा, उससे रिलीज हो जाएगा और डिफ्यूज हो जाएगा. ओके, सो क्या होता है, जैसे जब ये ब्लड उस पीएच पे टाइट्रेट हो जाता है pseudobranch में, देन इट गोस टू दी टुवर्ड्स रेटिना. रेटिना पे जहां से एंट्री होता है वो रेटिना पे, वहां पे एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं रीटे मिराबल. ओके, सो रीटे मिराबल पे क्या होता है कि वो रीटे में जैसे ही ये कैलिब्रेटेड ब्लड जो है वो रीटे मिराबल पे पहुंचता है, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ सेल जो एसिड है वो रिलीज होता है रीटे मिराबल से. उसकी वजह से अब वहां पे जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है इट स्टार्ट्स शोइंग द रूट इफेक्ट. उसकी वजह से क्या होगा, इट लिबरेट्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन. अब इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं है, तो सराउंडिंग में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ब्लड में बढ़ गया. और इसकी वजह से क्या होता है, जो हाई जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो जाती है. ठीक है, आपका रीटे मिराबल से फिर वो जाती है आपकी फिश रेटिना को. सो इस तरह से जो है ये ऑर्गन जो है वो हेल्प करता है टू सप्लाई द, और इट इंश्योर्स द सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द avascular fish retina. Okay, here we can see that ये आपका फिश का एग्जांपल है, ये रेटिना है, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं कोरोइड रेटी. ओके, सो क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये कोरोइड रेटी वाला रीजन है. ठीक है, जहाँ पे ये दोनों ये जो वेसल, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो बहुत क्लोज्ड आ जाती है. ये pseudobranch है, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एज आई हैव टोल्ड, pseudobranch receive the oxygenated blood from the efferent artery. Okay, सो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है pseudobranch में, फिर इसका कैलिब्रेशन होता है ब्लड का टू उस एसिडिक पीएच तक जहां से थोड़ा सा ही अगर एसिड रिलीज हो या हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो तो फिश हीमोग्लोबिन जो है वो रूट इफेक्ट जो है वो शो करना शुरू कर दे. और फिर जब कैलिब्रेटेड ब्लड यहाँ से रीटे मिराबल में जाता है, तो जो रीटे मिराबल की जो सेल्स होती हैं, एसिडोफिलिक सेल्स होती हैं, दे यूज टू सिक्रीट द एसिड. उसकी वजह से ब्लड का पीएच रिड्यूस होता है या ब्लड का पीएच और एसिडिक हो जाता है, और ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड थी वो रिलीज हो जाती है. ओके, सो दैट इज हाउ द pseudobranch help in the supply of oxygen to the fish eye. Okay, now we will see the swim bladder and its modifications. Okay, so swim bladder क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? Anyone? स्विम ब्लैडर देखा है आपने जब डाइसेक्शन किया था फिश का? यस मैम. क्या होता है स्विम ब्लैडर? स्विम ब्लैडर का लोकेशन बता सकते हैं बॉडी में कहाँ है? Ma'am, between the alimentary canal and the kidney. Okay, so swim bladder, which is also known as the air bladder or gas bladder. Okay, and this is a very typical characteristic of most of the bony fishes. Okay, here you can see that this is a swim bladder. Okay, which actually very thin walled sac like
in appearance which is filled with the gas. Okay, so मैम हाँ बोलो मैम प्रीवियस स्लाइड एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना कौन सी, मैम, ये प्रीवियस स्लाइड। ये वाली। यस मैम। ओके, सो मैंने जैसा कि बताया तो pseudo branch जो है it receives the oxygenated blood from the afferent artery. Okay, so जो oxygenated blood है which is already rich in the oxygen. Okay, उसके बाद अब यहाँ में क्या होता है, जब वो ब्लड स्यूडो ब्रांच में पहुंचता है तो यहाँ में ब्लड का पीएच कैलिब्रेट होता है, मतलब यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, एसिडोफिलिक सेल्स हैं और कुछ एंजाइम्स है लाइक कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो ब्लड का पीएच एसिडिक करता है। मतलब अभी जो ब्लड का पीएच है वो एसिडिक पीएच की तरफ बढ़ता है, ब्लड का पीएच रिड्यूस होता है। ब्लड के पीएच के रिडक्शन का रीजन क्या है कि अगर ब्लड का पीएच कम होगा तो जो फिश हीमोग्लोबिन है वो रूट इफेक्ट शो करेगा। रूट इफेक्ट क्या है, अगर ब्लड का पीएच कम है या एसिडिक है तो ऑक्सीजन टेंशन सराउंडिंग में चाहे कितनी ज्यादा हो, ऑक्सीजन प्रेशर चाहे आसपास के ऑक्सीजन प्रेशर चाहे कितना ज्यादा हो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन चाहे कितना ज्यादा हो, कभी भी क्या कहते हैं आपका जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके नहीं रहेगा, वो उससे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड का पीएच जो है वो कैलिब्रेट हो गया। अब यहाँ से वो पहुंचा इस रीजन पे जिसको हम बोलते हैं रेटे मिराबल, जहाँ पे ब्लड वेसल जो कैपिलरीज हैं ऑक्सीजन, एक है ऑक्सीजनेटेड एक है डीऑक्सीजनेट, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। जैसे देखिए ये यहाँ से जा रही है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, फिर वहां से लौट करके ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको वो आ, आ, मतलब वापस आ रहा है। तो जब यहाँ पे वो ब्लड आता है तो यहाँ पे जो रेटे मिराबिल्स पे जो सेल्स हैं वो भी लाइंड होती हैं एसिडोफिलिक सेल्स के साथ, तो वो सेल्स भी एसिड सिक्रीट करती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का पीएच फर्दर डिक्रीज होता है, ब्लड का पीएच और एसिडिक हो जाता है। अब वो इतना एसिडिक हो जाता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो रूट इफेक्ट शो करता है और जितनी भी बाइंड ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ वो सारी लिबरेट हो जाती है, उससे रिलीज हो जाती है और वो रेटिना की में जो जो क्या कहते हैं कैपिलरी रेटिना को ब्लड लेके जा रही है ऑक्सीजनेटेड, उसमें डिफ्यूज हो जाती है। इज इट क्लियर? Yes or no? यस Yes, मैम। ma'am. Okay. So now the swim bladder. Okay, the swim bladder, which is also known as the air bladder or gas bladder, is one of the characteristic structure in most of the bony fishes. Okay, this is basically, here you can see that this is a sac-like structure. Okay, which is filled very thin walled structure, which filled with the gas. Okay. और जो इसकी पोजीशन है, here you can see ये है गट, ये है वर्टिब्रल कॉलम और वर्टिब्रल कॉलम से ही किडनी जो है वो अटैच्ड रहती है। तो एयर ब्लैडर की जो पोजीशन है बेसिकली बिटवीन द गट एंड द किडनी। ओके, सो नाउ अभी जो बेसिकली जो एयर ब्लैडर है, मैंने बोला मोस्ट ऑफ द फिशेज में, बोनी फिशेज में, बट यस देयर इज अ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, कुछ में फंक्शनल मॉडिफिकेशन भी है, उनकी शेप में थोड़ा चेंज होता है, कुछ में फंक्शंस में भी होता है। सो जैसे कि आपके प्रिमिटिव बोनी फिश है पॉलिप्टेरस, इसमें बेसिकली बाई लोब्ड है, मतलब दो लोब, एक सैक है जिसके दो लोब हैं। ओके, तो मतलब दो, एक ही बैग से दो छोटे छोटे पाउच बन गए। वो जो उसमें जो राइट लोब होता है दैट इज लार्जर देन द लेफ्ट वन, यानी दो लोब हैं व्हिच आर अनइक्वल इन साइज, the left one is smaller in the size and the right one is the larger in the size, और दोनों एक एंड, दोनों जो बैग का पॉइंट है वो एक एंड पे मीट हो रहा है जिसको बोलते हैं ग्लोटिस। ये ग्लोटिस जो है बेसिकली फेरिंग्स में जाके ओपन हो रहा है। ठीक है, और इस ग्लोटिस के माउथ पर वॉल्व होते हैं जिसको हम मस्कुलर स्पिंक्चर बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका दूसरा है जैसे लेप्टोस्टेटिस होलोस्टी फिशेस है, इसमें क्या होता है, ब्लैडर सिंगल होता है, इलोंगेटेड सैक होता है और वो गट पे जो है एक ओपनिंग के थ्रू गट से अटैच्ड होता है, दैट इज नोन एज ग्लोटिस। ओके, उसके बाद तीसरा जो कैटेगरी है डिप्नोइस। ओके, डिप्नोइस है, प्रोटोप्टेरस है, देन आपका लेपिडोसाइरन है, ये सारी आपकी लंग फिशेस भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो इनका जो ब्लैडर है इन इन ग्रुप ऑफ फिशेस में इट इज मॉडिफाइड
and it performs the function of aerial respiration. स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो है वो लंग्स के जैसा मॉडिफाई हो जाता है और इसका जो फंक्शन है वो है for aerial respiration. Okay, so these are some of the modification in the primitive fishes. Now in the teleost, okay, मैंने जैसे बताया most of the fishes have the gas bladder, most of the bony fishes, but there are some group of fishes, some orders in which the gas bladder is absent, like Chloronectiformis है, Icaniformis है, Gigantoriformis, Saccharopharyngiformis, Pegasiformis, and Branchiformis. So these are the orders in which the fishes doesn't have the gas bladder. Okay, then if we talk about the shape of the gas bladder in the teleost fishes, it have variation. In some fishes it is oval, in some fishes it is tubular, fusiform, in some it is heart shape, in some it is horseshoe shape, or the dumbbell shape. Okay, so the shape of the sac also varies in different species. Okay, and when we dissected the fish, we actually dissected the Serenus megla in the anatomy class, in which you have located the swim bladder. So the fishes which belongs to the family Cyprinidae, their air bladder is divided into two interconnecting chamber. कुछ ऐसा bladder दिखा होगा आपको जैसा ये first slide पे दिख रहा है. Okay, so when Yes, ma'am. there is a two chamber, one और दोनों के बीच में contraction है, देख रहे हो ना, थोड़ा बीच में दबा हुआ है. एक चैम्बर ये है, दो चैम्बर ये है, और ये एक डक्ट है. दिस डक्ट इज नोन एज अ न्यूमेटिक डक्ट. सो ये जो गैस ब्लैडर है या जो आपका एयर ब्लैडर है, ये इस न्यूमेटिक डक्ट के थ्रू आपका जुड़ा होता है किससे? गट से. ओके, सो इस तरह तो ये आपका जो साइप्रोनिड्स में है, बेसिकली इसमें जो आपका ब्लैडर है वो दो इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स की तरह जुड़ा होता है. Now the modification in the bladder in sound producing fishes. Okay, कुछ fishes ऐसी होती हैं जो sound produce करती हैं. ठीक है, तो जो sound production में जो रोल होता है वो actually swim bladder का रोल है. swim bladder का रोल क्या होता है कि swim bladder के ऊपर finger like cecal projections आ जाते हैं, कुछ outgrowths हैं. Okay, finger like outgrowths हैं. तो जब air bladder, जब bladder के अंदर air fill होती है, okay, एयर क्या ब्लैडर के अंदर एयर फिल हो गई. अब एयर जो है वो पूरा ब्लैडर पूरा टेंस है क्योंकि उसमें एयर फिल्ड है. अब जब ब्लैडर पूरा टेंस्ड है और फिर जब ब्लैडर फिंगर की पोजीशन फिक्स है, फिंगर की पोजीशन फिक्स है, ब्लैडर पूरा टेंस्ड है, और अगर ब्लैडर फिक्स्ड फिंगर पोजीशन पे मूव कर रहा है तो भी साउंड जनरेट होता है. या फिर ब्लैडर की पोजीशन फिक्स है और जो फिंगर या सीकल प्रोजेक्ट आउटग्रोथ्स है वो अगर टेंस्ड ब्लैडर के ऊपर मूव करती है तो भी साउंड प्रोडक्शन होता है. अब आप कहेंगे साउंड प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? आप लोग बर्थडे पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं ना अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, सिबलिंग्स के लिए. ओके, तो बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन का सबसे की वो क्या होता है, क्या बोलेंगे, की आइटम क्या होता है डेकोरेशन का? बैलून्स. ओके, सो जब तो बकायदे बलून तो फुलाते होंगे क्योंकि सारे लोग तो पंप रखते नहीं है घर में, मुंह से फुलाते हैं. इज इट? यस और नो? Yes, ma'am. जब आप मुंह से फुला के बांधते हैं बलून्स को, या अगर टेंस्ड बलून है जिसमें एयर फिल्ड है उस पर अगर आप कभी फिंगर रब कीजिए तो साउंड प्रोड्यूस होता है. अब Yes, ma'am. Yes, ma'am. वही सेम मैकेनिज्म जो होता है फिशेस में भी साउंड प्रोडक्शन के लिए होता है. एयर ब्लैडर के ऊपर जो फिंगर लाइक सीकल आउटग्रोथ्स होती हैं, जब एयर ब्लैडर में ब्लैडर एयर पूरी फिल्ड है, ब्लैडर पूरा टेंस्ड है, और उसके ऊपर जब ये सीकल आउटग्रोथ्स मूव करते हैं, सो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ द साउंड. ओके, सो वही मैकेनिज्म यहाँ पे भी साउंड प्रोडक्शन के लिए यूज होता है. नाउ अब अगर मैं टीलियोस्ट की बात करूं तो ब्लैडर की दो कैटेगरी होते हैं विच इज बेस्ड ऑन द देयर कनेक्शन विद द गट. गट के साथ उनका किस टाइप से कनेक्ट हो रही है, किस तरह से स्विम ब्लैडर गट के साथ कनेक्ट हो रहा है, उसके बेसिस पे टीलियोस्ट में स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर के दो टाइप्स होते हैं. एक होता है आपका फाइसोस्टोमस ब्लैडर, दूसरा होता है फाइसोक्लिस्टिक ब्लैडर. सो जो आपका फाइसोस्टोमस ब्लैडर होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक तो दो चैम्बर होते हैं स्विम ब्लैडर में,
और वो स्विम ब्लैडर जो है गट के साथ, ठीक है, गट के साथ वो एक पतली सी डक्ट के साथ जुड़ा होता है, दैट डक्ट इज नोन एज अ न्यूमैटिक डक्ट। सो अगर इस तरह का स्विम ब्लैडर है किसी टीलियोस्ट में तो हम उसको बोलते हैं, मैंने अपने हाथ में कुछ लिख लो। फाइसोस्टोमस ब्लैडर बोलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये स्विम ब्लैडर है, ये एक स्मॉल चैम्बर है, ये लार्ज चैम्बर है, और यहाँ पे जो कंट्रैक्शन या जॉइंट है यहाँ से एक पतली सी डक्ट आ रही है जो कि आपकी गट में या स्टमक में ओपन हो रही है। ओके, तो इस तरह का जो स्विम ब्लैडर है, दैट स्विम ब्लैडर इज नोन एज फाइसोस्टोमस swim bladder. Okay, and it is common in the fishes which belongs to the order Cypriniformes, Clupiformes, Anguilliformes, Associformes. Okay, now the second category is physoclistic swim bladder. फाइसोक्लिस्टिक स्विम ब्लैडर में क्या होता है, जो आपकी न्यूमैटिक डक्ट होती है वो एब्सेंट होती है। तो जो फाइसोक्लिस्टिक स्विम ब्लैडर होता है उसको हम क्लोज टाइप स्विम ब्लैडर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ओपन डक्ट नहीं है जो कि आपकी गट के साथ जाके कनेक्ट हो। और जो फाइसोस्टोमस स्विम ब्लैडर है उसमें एक न्यूमैटिक डक्ट होती है जो कि गट के साथ कनेक्ट होती है, इसलिए फाइसोस्टोमस स्विम ब्लैडर को हम ओपन टाइप स्विम ब्लैडर भी कहते हैं और फाइसोक्लिस्टिक स्विम ब्लैडर को हम क्लोज टाइप स्विम ब्लैडर भी कहते हैं। ठीक है, सो ये जो फिशेस हैं लाइक कुछ ऑर्डर्स हैं जैसे गैस्टेरिफॉर्मिस है, म्यूगिलिफॉर्मिस है, नोटाकैथिफॉर्मिस है, अकैंथोप्टेरिगी है, इन सब में जो है आपका फाइसोक्लिस्टिक टाइप ऑफ स्विम ब्लैडर होता है। और जो जैसे यहाँ पे तो बेसिकली स्विम ब्लैडर में क्या होता है, आपकी गैस फिल होती है और गैस फिल होगी, गैस रिलीज होगी, गैस फिल होगी, गैस रिलीज होगी। तो टू मेंटेन द, तो इसमें क्या होता है, जो आपका फाइसोस्टोमस ब्लैडर होता है उसमें बेसिकली फिश जो है वो इनगल्फ करती है एयर, वो मुंह से इनगल्फ किया, गट में आई, गट से वो ब्लैडर में गई। ठीक है, अब ब्लैडर में फिल होगी, जब वहां से उसको रिलीज करना है तो फिर ब्लैडर से वो न्यूमैटिक डक्ट के थ्रू वापस गट में आ जाएगी, क्योंकि एक 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 ओपनिंग है, एक डक्ट है। ये तो प्रोविजन है आपका फाइसोस्टोमस स्विम ब्लैडर में। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपका फाइसोक्लिस्टिक ब्लैडर होता है, फाइसोक्लिस्टिक ब्लैडर में ऐसी कोई डक्ट नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है आपके ये फाइसोक्लिस्टिक स्विम ब्लैडर के ऊपर, जिसको बोलते हैं ओवल। सो ओवल जो होता है बेसिकली वो एक ऑर्गन होता है जो गैस एब्जॉर्प्शन मतलब रिलीज और रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। रिलीज कर रहा है ब्लैडर में और या फिर रीएब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो एक ऑर्गन होता है, उसको कोई डक्ट नहीं होती, उसमें ओवल होता है। और वहां पे यहाँ पे जैसे गट से गैस आ रही है उसमें रिलीज हो रही है, यहाँ जो आपका स्विम ब्लैडर में जो गैस है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो ओवल जो ऑर्गन है वो हेल्प करता है, ब्लड में जो गैस है वो अंदर आ रही है और रिलीज हो रही है। ओके, सो दिस इज द टू टाइप ऑफ swim bladder which is present in the teleos based on their connection with the gut. Okay, now the function of swim bladder. So अगर मैं primitive fishes की बात करूं like डिप्नोइज, जहाँ पे कि ये बिल्कुल लंग्स, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही लंग्स के जैसे मॉडिफाई हो जाते हैं, तो वहाँ पे ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है। सम साउंड प्रोड्यूसिंग फिशेज हैं उसमें रेजोनेटर की तरह हेल्प करता है। कुछ फिशेज हैं जिसमें इसका फंक्शन ऑडिटरी है, ऑडिटरी मतलब सुनने के लिए। एक्चुअली फिशेज में जो मेन ऑडिटरी ऑर्गन होता है उसकी इंटरनल ईयर हम जिसको बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो बेसिकली स्विम ब्लैडर जो है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में साउंड वेव को ट्रांसफर करता है। ओके, इट सर्व्स एज अ ट्रांसमिटर ऑफ साउंड वेव्स, ओके, टू द इंटरनल ईयर। उसके बाद इसका तीसरा फंक्शन सेंसरी है, इट वर्क्स एज अ बैरोमीटर, so it have the pressure receptor. Okay, so it actually sense the pressure. Okay, now the major function is a hydrostatic organ. Hydrostatic organ means the volume of gas जो है वो ब्लैडर में कितनी भर रही है, कितनी निकल रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, उसके बेसिस पे जो है फिश की डेंसिटी या जो बायोन्सी है वो चेंज होती है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए, अगर हम ओशियन में बात करते हैं तो जब फिश जो है एक रीजन से दूसरे में जाती है, पेलाजिक से बेंथिक में जा रही है या पेलाजिक से आप ऊपर से नीचे जा रही है, तो वाटर की डेंसिटी
आप जितना नीचे जाते हैं वाटर उतना डेंस होता जाता है, तो जब वो डिफरेंट डेंसिटी में फ्लो करेगी और अगर सेम उसका बॉडी की बायंसी रहेगी तो एक में वो श्रिंक कर सकती है ना, तो डिफरेंट क्या कहते हैं डेंसिटी के वाटर में उसको डिफरेंट बायंसी चाहिए, उसी हिसाब से गैस उस ब्लैडर में ब्लैडर में फिल होती है या रिलीज होती है। सो बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है वो हाइड्रोस्टैटिक फंक्शन होता है। ओके, जैसा कि मैंने बताया फाइसोस्टोमस ब्लैडर में डक्ट के थ्रू गैस का वॉल्यूम घटता या बढ़ता है, और फाइसोक्लिस्टिक जो आपका ब्लैडर है उसमें एक ऑर्गन होता है ओवल, जो बेसिकली रेटे मिराबिल और गैस ग्लैंड जिसमें होती है, वहां से गैस का रीएब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द swim bladder. So